ایران کا اسرائیل کے خلاف وعدہ صادق سوئم آپریشن یروشلم، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت کئی شہروں میں میزائلوں کی بارش، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ بیلسٹک میزائل حملے کے 5ویں مرحلے میں تل ابیب میں اسرائیل کے جوہری تحقیقاتی مرکز میں تباہی، اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز ملیہ میٹ، اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت متاثر، متعدد عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، کئی علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ایران کے حملے میں 7 اسرائیلی ہلاک، 90 سے زائد زخمی۔ ایران کے آپریشن میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیل کے 2 لڑاکا طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ عراق سے بھی اسرائیل پر کئی ڈرون حملے، کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحیت نہ رکی، تہران پر اسرائیلی حملے جاری، مہرآباد کے علاقے میں بڑے دھماکے کی تصدیق، مشرقی تہران کے علاقے حکیمیہ اور تہران پارس میں بھی دھماکوں کی گونج، اسرائیلی فوج کی ایران کے شہر زنجان پر حملے کی نئی فوٹیج سامنے آ گئی۔ امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنانے کے نتائج سنگین ہوں گے، امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب نے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے، کوشش کرتے رہیں گے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ ایرانی قیادت مذاکرات کے میز پر آئے۔ اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی، لیکن امریکہ حملوں میں ملوث نہیں۔ اسرائیل کا دفاع یا اس کی حمایت کرنے والے ممالک پر بڑا حملہ کیا جائے گا، ایران کا اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کو انتباہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے، اسرائیل کو فوجی اڈے دینے والے ممالک پر حملہ کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، اسرائیل کو حملے کے بعد بھاگنے نہیں دیں گے، نتائج اسرائیل کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی عالمی سطح پر سفارتی کوششوں میں تیزی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ۔ عباس عراقچی نے پاکستان، سعودی عرب، مصر، اردن، اٹلی، UAE کے رہنماؤں سے بھی رابطے کیے۔ اس کے علاوہ فرانس، آسٹریلیا، برطانیہ، قطر، قبرص کے وزراء خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عالمی برادری سے اسرائیلی حملوں کے خلاف مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل، کہا مشرقی وسطی میں امن اور استحکام یقینی بنایا جائے۔ ایران کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب، تل ابیب پر ایرانی حملوں کی خبر سنتے ہی ایران اور فلسطین میں جشن، ایرانی عوام خوشی سے جھوم اٹھے، مختلف شہروں میں ایرانی عوام دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے، لوگوں نے اپنی افواج کے حق میں خوب نعرے لگائے، فلسطین کے لوگوں نے بھی سڑکوں پر نکل کر خوب جشن منایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اسرائیلی جارحیت پر OIC اجلاس بلانے کا مطالبہ، مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے پر زور۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں خواجہ آصف کا کہنا تھا آج مسلمان متحد نہ ہوئے تو سب کی باری آئے گی، مشکل گھڑی میں ہر طرح سے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ مزید کہا وطن عزیز کے ایک ایک چپے کا دفاع کریں گے، ملک کا دفاع اپنے خون سے کریں گے۔ پاکستان کل بھی پوری طرح تیار تھا، آج بھی تیار ہے، اگر کوئی BLA کا ہمدرد ہے تو وہ غدار ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص سے قومی عزت اور وقار بلند ہوا۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، اسرائیلی جارحیت خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے پاکستان ایران کے جانی و مالی نقصانات پر دلی افسوس اور تعزیت پیش کرتا ہے، اسرائیلی عسکری حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ منشور اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
चीन ने ईरान पर इसराइली हमले की मसम्मत कर दी। चीन के सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब में ईरान पर इसराइली हमले की मसम्मत करते हुए कहा, इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है। खित्ते में कशीदगी बढ़ना किसी के मुफाद में नहीं। इसराइल को हमले रोकने चाहिए। ईरान की जौहरी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। हमलों के संगीन नताइज होंगे। खित्ते में तनाव में इजाफा किसी के मुफाद में नहीं होगा। इसराइल हमले बंद करे और तमाम फ़िरक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करें। सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग से खत्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों में तेज़ी आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं। सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ते में खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। अमीर कतर का अमरीकी सदर से राब्ते करके ईरान और इसराइल में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीकी सदर का जापानी वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ता हुआ। उधर रूसी सदर की ईरान और इसराइल को सालसी की पेशकश। रूसी सदर प्यूटन ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता करके इजरायली जाहिरियत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का गज़ा में इसराइली जाहिरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर गहरे तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम को फराहम की जाने वाली इमदाद के हवाले से इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन की इख़लाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का इरादा। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदादी इक़दामात में इजाफे पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होना थी। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में 17 से 20 जून को तय थी। कॉन्फ्रेंस के वक्त और मकाम को तब्दील किया जाएगा। कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। ब्रसेल्स में पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन चाहता है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेज़ी से बढ़ी। पाकिस्तान जामिया मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। भारत को सिफारती महाज पर फिर नाकामी का सामना। पाकिस्तान को FATF इजलास में ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। FATF के आज के होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसला। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की। मुतालबात नहीं माने गए तो पीपल्स पार्टी वफाकी बजट की हिमायत नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध वफाकी कॉलोनी नहीं, वफाक से पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। सोलर पर 18% टैक्स लगा, वो ख़त्म किया जाए। हैदराबाद सखर मोटरवे पर पहले 30 अरब रुपए रखे गए थे, अब फिर 15 अरब कर दिए गए हैं। इस तरह तो ये मंसूबा 12 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। बजट से एक रोज़ पहले वफाक का ख़त आया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। वफाक की कारकर्दगी अच्छी हो तो सूबे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की तनकीद। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा करते हुए कहा, वफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कम रखा गया। वफाक की जानिब से टैक्स कम जमा कराने की वजह से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। सूबाई हुकूमत ने कबायली इस्लाह में AIP की मद में 20 अरब रुपए खर्च किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सालाना तरक्याती बजट 153 अरब तक बढ़ा दिया। अफगान ट्रांसिट ट्रेड का दूसरा जहाज गवादर पोर्ट पर कामयाबी से पहुंच गया। 20,000 टन DAP खाद लेकर अफगान बहरी जहाज गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवर चौधरी कहते हैं, गवादर पोर्ट पर अफगान जहाज की कामयाब आमद से आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। गवादर पोर्ट खित्ते का हम तिजारती मरकज़ बनता जा रहा है। गवादर पोर्ट से अफगानिस्तान की बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई मज़ीद बेहतर होगी। बाजौर में रुकने कौमी असम्बली और मुआवनी खसूसी मुबारक ज़ेब खान के घर पर रॉकेट हमला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म के वाक़े की फौरी तहकीकात और हमलावरों को गिरफ्तार करने की हिदायत।
कराची में एक बार फिर जलजिले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। जलजिले की गहराई 35 किलोमीटर थी। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज मलीर के शुमाल में 12 किलोमीटर दूर था। वफाकी हंगामी हालात में अद्वियात की किल्लत से बचाव की हिकमत अमली तैयार। हुकूमत ने अद्वियात सप्लाई बारे कानून में तरमीम कर ली। तरमीम के मुताबिक अस्पतालों को अद्वियात की फराहमी तरजीही बुनियादों पर होगी। कंपनीज हंगामी हालत में अस्पतालों को अद्वियात फराहम करने की पाबंद होंगी। ड्रग रूल्स, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग 1976 में तरमीम की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी, जनूबी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को। मुल्क के दीगर जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज के दिन के हवाले से अपने पैगाम में कहा, खून का अतिया इंसानियत के लिए हमदर्दी का आगाज़ है। हम सब मिलकर महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी जान बचाने के लिए रज़ाकाराना खून अतिया करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारी, ऑस्ट्रेलिया को 7 खिलाड़ी आउट करना होगा।